टुडे वी विल सी द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट ब्लड को कैसे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। हार्ट क्या है हमारा, किसकी तरह एक्ट करता है, मोटर पंप की तरह। मोटर हम क्यों लगाते हैं घर में, ताकि वो जो पानी है वो क्या फास्ट फ्लो करे, दैट्स व्हाई यूज मोटर। वैसा ही काम हमारे अंदर हमारे बॉडी में कौन करता है, हार्ट एक्ट्स लाइक अ मोटर। अभी देखते हैं यहाँ पे वीडियो में शो कर रही हूँ। To keep the blood flowing throughout our body, we have a pumping system, and the heart is the pump, which is composed of muscle that pumps blood throughout the body, beating approximately 72 times per minute of our lives. See, this is मेरा right atrium. The human heart This has is 4 left chambers. atrium. The right atrium, Right atrium. the This left is left atrium, atrium. This is right the ventricle. right ventricle, And this is left ventricle. and the left राइट ventricle. एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स के बीच में कौन सा वाल्व है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। कौन सा एट्रियो, ट्राइकस्पिड। लेफ्ट There are एट्रियम 4 और valves in the लेफ्ट heart. वेंट्रिकल्स के बीच में These कौन सा valves वाल्व, are बाइकस्पिड वाल्व। tricuspid valve, दिस इज, ये कौन सा वाल्व दिख रहा है, आयोटिक वाल्व दिख रहा है यहाँ पे, mitral ट्राइकस्पिड। valve, mitral valve which is also known as bicuspid valve, aortic valve, aortic valve और pulmonary valve। aorta किसके बीच में pulmonic है, valve. लेफ्ट वेंट्रिकल एंड aorta के बीच में क्या, aortic valve which is a semilunar valve। These valves pulmonary are valve one-way valves. किसके बीच में, Now, See how you the have seen blood the flow. structure of the कैसे heart. blood flow Let us कर- find out how it दिस works. इज योर राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट The blood becomes राइट वेंट्रिकल्स में, oxygen-rich राइट by वेंट्रिकल से absorbing oxygen पल्मोनरी in the आर्टरी lungs. फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए, लंग्स के The पास जा function रहा है of the heart ऑक्सीजनेशन के लिए। starts when यहाँ पे oxygenated ब्लड आ रहा है blood लंग is से, carried किसके from थ्रू, the lungs पल्मोनरी to the वेन्स left के थ्रू। atrium of the पल्मोनरी heart by वेन्स, means फोर of the पेयर्स ऑफ pulmonary पल्मोनरी, टू veins. पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन, दैट इज फोर The वेन्स left कम atrium फ्रॉम relaxes. लंग्स। This कहाँ आ blood रहे, is कहाँ pumped ओपन हो into रहे, the लेफ्ट heart. एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जा रहा है, When the left atrium contracts, लेफ्ट the left वेंट्रिकल्स में। ventricle जब relaxes लेफ्ट एट्रियम simultaneously. कॉन्ट्रैक्ट होता है The तब left atrium लेफ्ट pushes एट्रियम the से कहाँ blood जाता है into ब्लड, the लेफ्ट left वेंट्रिकल्स ventricle में। through सी the यहाँ पे one-way दिखाया हुआ है valve. इन दिस डायग्राम और इन दिस वीडियो। When the left ventricle When contracts, ventricular the blood is contracts, तब pumped क्या into होता the है, जब aorta, वेंट्रिकल्स में which जितने भी carries ब्लड से कहाँ oxygenated जाते blood हैं, to the different aorta parts में। of the body, किसके थ्रू, except the lungs. aortic valve के थ्रू, पूरे बॉडी सिस्टम में। पूरे बॉडी सिस्टम में जाने के Oxygenated बाद क्या blood होता है, reaches the आर्टरी के different थ्रू। parts of the body आर्टरी through क्या the कर blood रहा है, ब्लड vessels को called the हार्ट arteries. से दूर लेके कहाँ The जा रहा है, arteries सारे gets ऑर्गन्स के branched पास। into capillaries, which आर्टरी then ब्लड को reaches to the दूर different लेके जा रहा है, organs of कहाँ the से, body. हार्ट से दूर। टेक ब्लड The blood अवे then फ्रॉम दी becomes हार्ट। deoxygenated. कहाँ, बाकी सब टिश्यू और And the ऑर्गन के blood पास क्या फॉर्म capillaries करता है, gets कैपिलरी। mixed and form कैपिलरी से thicker फिर blood वेन, vessels called the वेन से veins. क्या फॉर्म होता है, The वेना veins कावा। carry हमने देखा था deoxygenated सुपीरियर, दिस blood इज to the heart. सुपीरियर वेना कावा। The blood vessels इन्फीरियर वेना that कावा carry से ब्लड कहाँ deoxygenated जाता है, blood to राइट heart are एट्रियम। known as the vena cava. दिस इज योर वेना कावा, The सुपीरियर वेना deoxygenated कावा और blood from इन्फीरियर different वेना parts कावा। of body enters the वहाँ upper right पे chamber ओपनिंग of the दिख रहा है, heart, राइट which is एट्रियम called में। the right इंफीरियर atrium. वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ The रहा right है, atrium राइट gets एट्रियम। contracted, राइट एट्रियम allowing के the blood कॉन्ट्रैक्शन, to flow एट्रियम के into the right कॉन्ट्रैक्शन से कहाँ जा रहा है ventricle, which ब्लड, contracts राइट with the वेंट्रिकल्स में। expansion of the right किसके थ्रू, atrium through the ट्राइकस्पिड one-way वाल्व के थ्रू। valve. अभी जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है The तो right राइट ventricle वेंट्रिकल then से ब्लड contracts, कहाँ जाता pushing है, the blood into the pulmonary पल्मोनरी artery. आर्टरी में। तब क्या ओपन होता है, पल्मोनरी आर्टरी ओपन होता है। पूरा ये कंडक्टिंग सिस्टम का The नाउ वी विल सी pulmonary द artery carries कैसे the होता है ये पूरा deoxygenated प्रोसेस। blood to the lungs for पल्मोनरी oxygenation. आर्टरी के The थ्रू lungs कहाँ जाता है, oxygenate the blood लंग्स by के पास। exchanging of gases and एक्सचेंज flows ऑफ गैस back होता into है the heart through the पल्मोनरी में। pulmonary ये vein पूरा साइकिल रिपीट होता है। हम देखने वाले कार्डियक साइकिल किसे कहा जाता है, इस and पूरे starts the इवेंट को, पूरे circulatory साइकिल को हम cycle क्या all बोलने over वाले, again. कार्डियक साइकिल। नाउ वी विल सी कि जब हार्ट रिलैक्स स्टेट में होता है, हम उस स्टेट को क्या बोलते हैं, डायस्टोल। मैंने बताया था डायस्टोल का मीनिंग होता है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मीन्स जब हमारा हार्ट क्या है, रिलैक्स स्टेट में, रिलैक्स्ड है। वाई इट इज कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्टरी और वेंट्रिकल्स दोनों ही क्या होते हैं, एकदम रिलैक्स स्टेट में होते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। कितने सेकेंड के लिए होता है, अभी याद रखो 0.4। जब कार्डियक साइकिल देखेंगे तो हम टाइमिंग देखने वाले हैं कितने सेकेंड्स के लिए होता है। अभी के लिए इतना याद रखो कि जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल जब हार्ट क्या है, रिलैक्स स्टेट में। अभी जॉइंट क्यों बोला गया, क्योंकि आर्टरी और वेंट्रिकल्स दोनों ही क्या है, रिलैक्स्ड है। दैट्स व्हाई इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल्स और आर्टरिया दोनों ही क्या होते हैं, रिलैक्स स्टेट में होते हैं। इस स्टेट में क्या होता है, इस डायग्राम में देखो, स्टेट में क्या होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व।
ये दोनों वाल्व क्या है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। क्या है इस वक्त, ओपन होते हैं। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कैसे होते हैं, ओपन होते हैं, दैट इज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं। और सेमी ल्यूनार वाल्व दैट इज पल्मोनरी एंड आयोटिक वाल्व क्या है, क्लोज है। इस डायग्राम में देखो, जब हार्ट किस स्टेज में होता है, जॉइंट डायस्टोल में, तब उस वक्त क्या होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दैट इज आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ओपन होता है। तो जितना भी ब्लड है राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में कहाँ फ्लो हो जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आ रहा है, कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड। सी यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, अगर इसमें क्लियरली नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हो। राइट एट्रियम से ब्लड जब जॉइंट डायस्टोल हो रहा है उस वक्त क्या होता है, कौन सा वाल्व ओपन होता है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। तो जितने भी ब्लड्स होंगे राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में अपने रेस्पेक्टिवली जो चेम्बर्स है उसमें जाके ब्लड फ्लो हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, 70% वेंट्रिकुलर फीलिंग्स। क्यों वेंट्रिकल्स फील हो जा रहा है, 70% ब्लड ऐसे ही इसके अंदर फ्लो हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या है, ओपन है। इस वजह से जितने 70% वेंट्रिकुलर फीलिंग हो जाती है ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। कितना परसेंट होता है ये याद रखना है, 70%। और कौन सा वाल्व क्लोज होता है, दैट इज सेमी ल्यूनार वाल्व। कौन सा, पल्मोनरी वाल्व एंड आयोटिक वाल्व इस वक्त क्या होते हैं, क्लोज होते, बंद होते। दैट्स वाई इस टाइम पे जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, 70% वेंट्रिकुलर फीलिंग। 70% जब रिलैक्स स्टेट में होता है तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो ब्लड है एट्रियम में प्रेजेंट, इट मे बी डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीजनेटेड इन लेफ्ट एट्रियम और डीऑक्सीनेटेड इन राइट एट्रियम। कहाँ चले जाते हैं, रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में। राइट एट्रियम में तो राइट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट एट्रियम में तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। इतना समझ आया जॉइंट डायस्टोल। नाउ वी विल मूव टू आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रिया क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई वी यूज आर्ट्रियल सिस्टोल वर्ड्स। अभी आर्ट्रियल सिस्टोल होता कैसे, ये हमारा क्या है, एसए नोड। एसए नोड क्या जनरेट करता है, इम्पल्स कहो, सिग्नल कहो या एक्शन पोटेंशियल। ये तीनों ही वर्ड एक ही चीज को रिफर करते हैं, इम्पल्स, सिग्नल एंड एक्शन पोटेंशियल। जब भी ऐसे नोड क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है खुद से, दैट्स व्हाई ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। खुद से जब इम्पल्स जनरेट करता तो उसकी वजह से क्या होता है, इम्पल्स जनरेट होने की वजह से एक्शन, सिग्नल पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से एक्शन पोटेंशियल, एक्शन होगा, कुछ ना कुछ एक्शन होगा जिसने ये पोटेंशियल जनरेट किया ऐसे नोड ने। ऐसे नोड कितना इम्पल्स जनरेट करता है एक मिनट, दैट इज रेंज में 70 to 75। इतना क्या करता है वो, इम्पल्स जनरेट करता है इन 1 मिनट। दैट्स व्हाई वी हैव 1 मिनट में कितना, 72। एक रेंज दिया जाता है 72, मान के चलते हैं 72 टाइम्स वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। वो जितने बार ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ही क्या होगा, हमारा हार्ट बीट होगा, उतने टाइम्स हमारा हार्ट बीट करेगा, धड़केगा। तो ऐसे नोड ने क्या किया, इम्पल्स जनरेट किया, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे दोनों जो आर्टरी है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से अभी हमने देखा था आर्ट्रियल सिस्टोल में ये दोनों ही ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज्ड है, क्लोज है, सारे वाल्व क्लोज है, सेमी लूनार वाल्व और आयोटिक वाल्व दोनों ही क्लोज है। जब ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आर्टरी के पास क्या होता है, साइज छोटा है, प्रेशर ज्यादा बन जाता है। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ पे साउंड नहीं सुनाई देगा, यहाँ पे साउंड नहीं सुनाई देगा। आर्ट्रियल सिस्टोल में कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता, यू कांट हियर एनी वॉइस इन आर्ट्रियल सिस्टोल। बस इतना याद रखो, स्मॉल साइज होता है आर्ट्रिया का, आर्ट्रिया जो होता है स्मॉल साइज होता है, उसके अंदर ज्यादा प्रेशर होगा। बॉल्स लो पड़ा ना, जहाँ पे वॉल्यूम कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा। तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से कौन सा वाल्व ओपन हो जाता है, ट्राइकस्पिड, ये दिस इज यहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या ओपन हो जाते हैं, जिससे ब्लड कहाँ जाता है, हमें पता इतना है कि डायस्टोल में क्या था, 70% फिलिंग पहले हो गई थी, बाकी बचा कितना 30%। वो किस वजह से होता है, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 30% वेंट्रिकुलर फीलिंग इज कब होता है, ये ड्यूरिंग आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। और आर्ट्रियल सिस्टोल
30% ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग इज हैपन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्टरिया। ऐसे नोड अभी उतना ज्यादा रेंज नहीं है उसका, वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो क्या किसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिर्फ दोनों आर्टरिया को साइमल्टेनियसली। ये वर्ड याद रखना, बोथ द आर्टरिया साइमल्टेनियसली, साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक आगे एक पीछे नहीं। और इसका टाइमिंग कितना होता है, 0.1 सेकेंड के लिए, 0.1 सेकेंड। सोचो कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए हमारा हार्ट बीट करता है टोटल। तो इस वजह से आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, 30% वेंट्रिकुलर फिलिंग। इस वक्त क्या होता है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है, उस प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और इस वक्त क्या क्लोज है, ये याद रखना है। कौन से वाल्व क्लोज है, सेमील्यूनर वाल्व अभी भी क्लोज है, सेमील्यूनर वाल्व क्लोज है, सेमील्यूनर वाल्व क्या है, क्लोज्ड है। आर्टरियल सिस्टोल में कौन से वाल्व क्लोज है, सेमील्यूनर वाल्व क्लोज्ड है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाते हैं ड्यू टू अ प्रेशर। आर्टरिया क्या स्मॉल साइज, जितना वॉल्यूम कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर लगने की वजह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या ओपन हो जाते हैं, जिसके वजह से 30%, 70% तो जब रिलैक्स स्टेट में तभी फील हो गया था वेंट्रिकल्स। अभी सॉरी 30% फीलिंग कब हो गया, जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उस वक्त कौन सा वाल्व ओपन था, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन था। और सेमील्यूनर वाल्व विच इज आल्सो नोन एज आयोटिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व, वो क्या है उस वक्त, क्लोज्ड है। देखो यहाँ पे डायग्राम में मेंशन किया हुआ है मैंने। नाउ वी विल सी वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सॉरी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी इम्पल्स कहाँ जनरेट होता है, ऐसे नोड का उतना रेंज नहीं है कि वो वेंट्रिकल्स के पास भी जाके क्या उस इम्पल्स को पूरा वेंट्रिकल्स के पास लेके जा सके। अब वो उतना छोटा सा है, नोडल टिश्यू है, पूरा इतना रेंज नहीं होता ऐसा कि वो वेंट्रिकल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करवा पाए। इसलिए यहाँ पे हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में लोअर द राइट एट्रियम, लोअर रीजन ऑफ राइट एट्रियम ने देखा था क्या प्रेजेंट होता है, एवी नोड। तो ये हमारा क्या है, एवी नोड। ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हुआ, उसने किसको इनिशिएट किया, एवी नोड को। अब एवी नोड भी एक नोड है, ये भी मायोजेनिक है, अपना खुद का इम्पल्स जनरेट करेगा। तो ये भी इम्पल्स जनरेट करता है बट लेस देन इन नंबर, डिपेंड करता है नंबर। सबसे ज्यादा कौन जनरेट करता है, ऐसे नोड, इसलिए ऐसे नोड को क्या कहा जाता है, पेसमेकर। एवी नोड भी इम्पल्स जनरेट करता है बट ऐसे नोड के कंपैरिजन में लेस इन नंबर। एवी नोड की अभी यहाँ से ऐसे नोड इसको इनिशिएट कर देता है, जस्ट इनिशिएट। तो एवी नोड भी अब क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है। अब वो एवी नोड कहाँ लेके जाता है इम्पल्स, इज एबी बंडल के पास, विच इज ऑल्सो नोन एज बंडल ऑफ हिज। इसे हम और क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कैसे होता है हम वो देखने वाले। एवी नोड ने इम्पल्स जनरेट किया, वो इम्पल्स कहाँ गया, एवी बंडल के पास। एवी बंडल विच इज ऑल्सो नोन एज बंडल ऑफ हिज, आगे जाके उस बंडल ऑफ हिज कहाँ डिवाइड हो जाता है, राइट बंडल ऑफ हिज एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिज। ये इम्पल्स कहाँ जा रहा है, एवी नोड, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एवी नोड टू एवी बंडल टू राइट बंडल ऑफ हिज, लेफ्ट बंडल ऑफ हिज, राइट बंडल ऑफ हिज एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिज। लेफ्ट बंडल ऑफ हिज कहाँ जाता है, ये राइट एंड लेफ्ट परकेंजे फाइबर्स। यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है, राइट एंड लेफ्ट परकेंजे फाइबर, दिस आर द हेरी लाइक अपीयरेंस। ये क्या है, फाइबर्स है जो कहाँ तक इनर्वेटेड है, पूरे वेंट्रिकल्स में, ताकि क्या हो सके, वेंट्रिकल्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो ब्लड में उतने प्रेशर से पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे एवी बंडल के पास आया, एवी बंडल से कहाँ गया सिग्नल और इम्पल्स, बंडल ऑफ हिज से कहाँ गया, राइट और लेफ्ट में डिवाइड होगा। तो पूरे इसके वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है वेंट्रिकल्स का। अभी वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन था वो क्या हो जाता है, क्लोज्ड। क्या होता है, क्लोज्ड। प्रेशर जनरेट होने, वेंट्रिकल सिस्टोल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होने की वजह से जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व था वो क्या हो जाता है, आर्टरोवेंट्रिकुलर वाल्व क्या होता है, क्लोज। यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं लब।
विच इज द फर्स्ट हार्ट साउंड। ये कब सुनाई देता है? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वो भी कब? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में कब? जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के क्लोजर से। ये याद रखना कि हमेशा साउंड किसी वजह से आता है? क्लोजिंग ऑफ वाल्व। पहला साउंड किसकी वजह से आता है? क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, दैट इज आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ये कौन सा साउंड है? लब, पहला हार्ट साउंड। अभी सेमिल्यूनर वाल्व प्रेशर की वजह से क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। पहले प्रेशर की वजह से क्या होता है? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाते हैं, और सेकंड प्रेशर की वजह से जैसे जैसे क्लोज हो, यहाँ पे चेम्बर्स क्लोज होता जा रहा है, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है? सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हो जाता है। यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया। दिस इज योर सेमिल्यूनर वाल्व एंड दिस इज योर आयोटिक वाल्व। सेमिल्यूनर में ही आ गया आयोटिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड प्रेशर होने की वजह से क्या होता है? बंद हो जाता है। इस वजह से साउंड प्रोड्यूस। अब बंद हो गया है और कौन सा वाल्व ओपन हो गया है? पल्मोनरी वाला। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाता है? पल्मोनरी आर्टरी से। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चला जाता है? लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन। कहाँ चला जाता है? लंग्स के पास। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है? वो भी कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। अभी यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? आयोटा में। देखो यहाँ पे दिख रहा है आयोटा में। आयोटा में जाने के बाद कहाँ जा रहा है? पूरे बॉडी पार्ट में। पूरे बॉडी पार्ट में। पल्मोनरी valves open through the blood goes to the lungs. Aortic valves open through which blood goes to body system, पूरे बॉडी सिस्टम में। अभी वेंट्रिकुलर डायस्टोल जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अभी थोड़ा वेंट्रिकल क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। जैसे जैसे वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, दैट इज रिलैक्स होगा वेंट्रिकल्स, तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने की वजह से एक सेमिल्यूनर वाल्व से वो क्या होंगे? क्लोज हो जाएंगे। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए हमारा वेंट्रिकल्स क्या है? क्लोज चेम्बर की तरह एक्ट करता है। क्लोज चेम्बर की तरह। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व भी क्या क्लोज कर दिया? सेमिल्यूनर वाल्व भी क्लोज कर दिया। इसके अंदर जो ब्लड फीलिंग होता है हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोवॉल्यूमेट्रिक। 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 इस वक्त ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एक्चुअली वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जब धीरे धीरे प्रेशर कम होना चालू होता है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल धीरे धीरे जब प्रेशर कम होना चालू होता है तो सेमिल्यूनर वाल्व क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। उस वक्त एक साउंड सुनाई देता है। ये याद रखना है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में नहीं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। जैसे जैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कम होता चला जाता है धीरे धीरे, तो प्रेशर क्या होता है? कम होता है। इसकी वजह से सेमिल्यूनर वाल्व क्या होता है? क्लोज हो जाते हैं। सेकेंड हार्ट ऑफ साउंड दैट इज डब। कौन सा साउंड सुनाई देता है? डब। सेकेंड हार्ट साउंड। सेकेंड हार्ट साउंड कब सुनाई दे रहा है? ये एंडिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जैसे जैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो रहा है, और विच इज ऑल्सो नोन एज बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी बोल सकते हैं। बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या हो रहा है? सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज। लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एंडिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हो रहा है? क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व विच प्रोड्यूस सेकेंड हार्ट साउंड। तो हम एनसीईआरटी की तरफ जाएंगे। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंडिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हो रहा है? सेमिल्यूनर वाल्व क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है, जिसकी वजह से दूसरा हार्ट साउंड सुनाई देता है, जिसे क्या कहते हैं हम? डब। डब और डब। ये याद रखना, लब और डब दोनों हार्ट कब सुनाई दे रहे? वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स में। बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स में कौन सा साउंड सुनाई देता है? लब। किसकी वजह से? क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। सेकेंड हार्ट साउंड कब सुनाई देता है? दैट इज डब। कब सुनाई देता है? एंडिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, प्रेशर कम होने की वजह से सेमिल्यूनर वाल्व्स। यहाँ पे देखो सेमिल्यूनर वाल्व्स क्या हो जाते हैं? सेमिल्यूनर वाल्व्स क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। दैट्स व्हाई हम सेकेंड हार्ट सुनाई देता है, इट इज डब। सेकेंड हार्ट साउंड। यहाँ क्लियर है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल, यहाँ क्लियर है? पहले हमने देखा जॉइंट डायस्टोल, देन आर्ट्रियल सिस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का टाइमिंग था 0.4 सेकेंड, आर्ट्रियल सिस्टोल 0.1, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 0.3। तो पूरा मिला के कितना हो गया? टाइमिंग अगर काउंट करो तो 0.8। ये पूरा इवेंट, एक वन टाइम हार्ट को बीट करने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड। किसके लिए? एक हार्ट बीट के लिए। अभी हमें पता है 72 टाइम हार्ट बीट करता है।
1 मिनट में। तो एक हार्ट बीट के लिए कितना टाइम लग रहा है? 0.8 सेकेंड्स। इसी को हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। द इवेंट एसोसिएटेड जितना भी इवेंट्स हो रहा है, एक पूरे ब्लड को पूरे बॉडी सिस्टम में सर्कुलेट करने के लिए, ब्लड को राइट एट्रियम से लेके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए जितने भी इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, जितने भी फंक्शन वगैरह हो रहे हैं, उस पूरे को हम क्या बोलते हैं? द इवेंट एसोसिएटेड विथ वन हार्ट बीट। उसे हम क्या बोल रहे हैं? विथ वन हार्ट बीट आर कॉल्ड एज, कि फिर से वही साइकिल रिपीट होगा। एक बार पूरे बॉडी सिस्टम में चलेगा, फिर से बॉडी सिस्टम में ब्लड हार्ट में आएगा, फिर पूरा बॉडी सिस्टम में जाएगा, फिर बॉडी सिस्टम से पूरे कहाँ जाएगा? वेन्स में, वेन से कहाँ आएगा? हार्ट में। इसे हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। द इवेंट एसोसिएटेड विथ वन हार्ट बीट आर कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ये याद रखना, फीटल लाइफ में जब भी हार्ट पूरी तरीके से बना नहीं होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, वी कैन कॉल देम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, क्या होता है? फीटल लाइफ में एक ओपनिंग देखने मिलती है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। यहाँ पर डायग्राम में देखो, ये नॉर्मल हार्ट है, जब बर्थ हो जाता है उसके बाद का। ड्यूरिंग फीटल लाइफ राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग देखने मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवाले। क्या बोलते हैं उसे? फोरामेन ओवाले। जब बर्थ हो जाता है उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रेमिनेंट, तो कुछ टुकड़ा बचा रहता है, इसे बोलते हैं रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवाले। क्योंकि जब छोटे होते, फीटल लाइफ में होता है, तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ओपनिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड। ये कब देखने मिलता है? ड्यूरिंग फीटल लाइफ और एम्ब्रियोनिक लाइफ में। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम? फोरामेन ओवाले। कहाँ देखने मिलता है? बिटवीन राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में। नाउ द सेकेंड फीटल लाइफ में जो हमें देखने मिलता है, ये आयोटा में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में और पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स के पास लेके जाता है ब्लड, उसके पास कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन देखने मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टरियोसस। ये कब देखने मिलता है ये कनेक्शन? ड्यूरिंग फीटल लाइफ। ये कब देखने मिलता है? ड्यूरिंग फीटल लाइफ। किसके बीच का कनेक्शन है? कनेक्शन बिटवीन आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। इसे हम क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टरियोसस। जब बर्थ हो जाता है उसके बाद यहाँ पे कुछ रेमिनेंट्स बचता है, इससे हम क्या बोलते हैं? रेमिनेंट्स ऑफ डक्टस आर्टरियोसस। समझ है? इतना क्लियर है आज का लेक्चर्स। आज के लेक्चर्स में हमने क्या देखा? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, दैट इज हमने जॉइंट डायस्टोल से देखा, जॉइंट डायस्टोल, फिर आर्ट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जॉइंट डायस्टोल कितने सेकेंड का होता है? 0.4 सेकेंड। आर्ट्रियल सिस्टोल इज 0.1 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 0.3 सेकेंड। तो टोटल कितना टाइम लग रहा है पूरे ब्लड को वन साइकिल परफॉर्म करने के लिए? कितना टाइम लग रहा है? 0.8 सेकेंड। तो 1 मिनट में हमने देखा है 72 टाइम हार्ट बीट्स करता है। तो इसका मतलब क्या है? 1 मिनट में कितने साइकिल्स हो रहे हैं? 72 साइकिल। तो एक साइकिल को होने के लिए कितना टाइम लग रहा है? एक साइकिल को होने के लिए 0.8 सेकेंड। ऐसे 72 साइकिल्स होंगे तो कितना टाइम लगता है इसे? 1 मिनट। एक साइकिल होने के लिए 0.8 सेकेंड, तो 72 साइकिल होने के लिए 1 मिनट। कैलकुलेट करना है 0.8 सेकेंड के लिए 1 साइकिल, तो 1 मिनट में कितना साइकिल? तो यू हैव टू अप्रोक्सीमेटली 72 आंसर। नाउ वी विल सी कार्डियक साइकिल। पहले आर्ट्रियल सिस्टोल होता है। यहाँ पे देखो सिस्टोल, जब आर्ट्रिया क्या हो रहा है? सिस्टोल कंडीशन में। ये कितने सेकंड के लिए होता है? यहाँ पे देखो दिया वर्ड आर्ट्रिया, और ये वेंट्रिकल्स के लिए। आर्ट्रियल सिस्टोल कब होता है? 0.1 सेकेंड के लिए। फिर कौन सिस्टोल करता है? वेंट्रिकल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कितने सेकेंड का होता है? 0.3। और आर्ट्रिया भी, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तब आर्ट्रिया क्या है? डायस्टोल स्टेज में। ये पूरा स्टेज
ये दोनों ही जब जॉइंट डायस्टोल में होगा तो क्या होगा, इतना स्टेज क्या है, दोनों का जॉइंट साथ में रिलैक्स स्टेट में, इसे क्या बोलते हैं 0.3 0.4 साथ में, दैट इज आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल कितने मिनट के लिए, 0.1 सेकेंड। आर्ट्रियल डायस्टोल पूछा जाएगा तो कितने सेकेंड के लिए, ये पूरा, ये 0.4 भी और 0.3 भी, तो पूरा कितना हो गया आर्ट्रियल डायस्टोल। आर्ट्रियल डायस्टोल कितने सेकंड के लिए हो गया, 0.7 सेकंड के लिए। जब आर्ट्रियल सिस्टोल, जब आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब उस वक्त क्या है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में। यहाँ पे मैं डायग्राम बनाती हूँ क्लियरली। 0.1 2 3 4 5 6, this is for atria, this is ventricle 1 2 3 4 5 6 7 8, this is for atria and this is for ventricles। आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है सबसे पहले, आर्ट्रियल सिस्टोल ये क्या है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 and 0.8, same this is here 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 and 0.8। जब आर्ट्रियल सिस्टोल हो रहा है तभी क्या है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स है। अभी 0. कितने समय के लिए वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, 0.3, ये कितना हो गया टाइमिंग, काउंट करोगे तो 0.3, दैट इज 0.1 0.2 0.3 के लिए आर्ट्रिया। इस वक्त क्या है आर्ट्रिया सिस्टोल में, यहाँ पे क्या है सिस्टोल, 0.1 टाइम के लिए सिस्टोल, बाकी सारे स्टेज में क्या है वो डायास्टोल। इस यहाँ पे सिस्टोल देखने मिल रहा है सिर्फ 0.3 सेकेंड के लिए, बाकी टाइम क्या है वो डायास्टोल। तो दोनों ही साथ में कब देखने मिल रहे हैं, यहाँ 0.5 से साथ में देखने मिल रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं जॉइंट डायास्टोल। तो जॉइंट डायास्टोल कितने सेकंड का देखने मिल रहा है 0.4, और सिर्फ आर्ट्रियल डायास्टोल पूछा जाएगा तो कितने सेकंड का 1 2 3 4 5 6 7। आर्ट्रियल सिस्टोल 0.1 और रिलैक्सेशन दैट इज डायास्टोल 0.7। जॉइंट डायास्टोल पूछा तो 0.4 सेकेंड। वेंट्रिकुलर डायास्टोल पूछा है तो वेंट्रिकुलर डायास्टोल, वेंट्रिकल्स कब तक रिलैक्स होगा वो पूछा हुआ है, तो क्या जवाब होगा, यहाँ पे भी डायास्टोल में है 1 2 3 4 0.5, यहाँ पे भी तो है एक डायास्टोल स्टेज है ना, रिलैक्स स्टेज है। जब आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है वेंट्रिकल क्या है रिलैक्स स्टेज है, तो 0.5 सेकेंड फॉर वेंट्रिकुलर डायास्टोल, 0.3 सेकेंड फॉर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये याद रखना है टाइमिंग तुम्हें, आर्ट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, आर्ट्रियल डायास्टोल 0.7 सेकेंड। जॉइंट डायास्टोल कब हो रहा है, जॉइंट डायास्टोल कितने सेकेंड के लिए 0.4। वेंट्रिकल डायास्टोल, वर्ड का याद रखना, वेंट्रिकुलर डायास्टोल, वेंट्रिकुलर डायास्टोल पूछा तो कितने सेकेंड के लिए 0.5। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने मिनट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सिस्टोल, तो दैट इज 0.3 सेकेंड। ये सब कुछ याद रखना है, सिस्टोल कितने सेकेंड्स के लिए हो रहा है, डायास्टोल कितने सेकेंड्स के लिए हो रहा है, एंड जॉइंट डायास्टोल कब हो रहा है, साउंड कब प्रोड्यूस होता है हार्ट का, लब और डब। ये याद रखना है कि सारे साउंड्स कब प्रोड्यूस, दोनों साउंड्स कब प्रोड्यूस, क्लोजिंग ऑफ वाल्व, क्लोजिंग ऑफ कौन से वाल्व, क्लोजिंग फर्स्ट साउंड सुनाई देता है लब, दैट इज क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व्स अकर, जिसके वजह से दूसरा हार्ट साउंड सुनाई देता है व्हिच इज नोन एज डब। दिस इज योर कार्डियक साइकिल, all about cardiac cycle and conducting system of heart. Now in next video we will see the disease of heart। पूरा और क्लियरली समझ, तो यहाँ पे देखो आर्ट्रियल सिस्टोल बिगिन होता है, आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड कहाँ जाता है वेंट्रिकल्स में, दिख रहा है इस डायग्राम में। ईसीजी देखने वाले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ,
फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल फर्स्ट फेज में कॉन्ट्रैक्शन पुशेस एवी वाल्व क्लोज, इसकी वजह से जो क्या होता है एवी वाल्व क्लोज हो जाता है और थोड़े समय के लिए सेमी लूनर वाल्व भी क्लोज होता है और एवी वाल्व भी क्लोज होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं आइसो, एक क्लोज चेम्बर की तरह एक्ट करता है हमारा जो वेंट्रिकल्स है, किसकी तरह एक्ट करता है क्लोज चेम्बर की तरह, इसलिए हम बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक। आइसो वॉल्यूमेट्रिक। इस वक्त क्या हो रहा है आइसो वॉल्यूम, यहाँ पे भी अभी ग्राफ मत देखो क्योंकि ग्राफ ईसीजी में आएगा, यहाँ पे सिर्फ तुम क्या देखो फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। सबसे पहले आर्टरियल सिस्टोल हुआ, आर्टरियल सिस्टोल से ब्लड कहाँ गया वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स में एट द अर्ली स्टेज और फर्स्ट फेज देखोगे कि क्लोज चेम्बर की तरह एक्ट करा आइसो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जस्ट फॉर अ सेकेंड्स आइसो वॉल्यूम। फिर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है सेमी लूनर वेल्व ओपन हो जाते हैं, सेमी लूनर वेल्व ओपन होने की वजह से जो राइट वेंट्रिकल्स है उससे ब्लड कहाँ जाता है पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास चला जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास जो ब्लड है वो कहाँ चला जाता है अयोटा में। ये क्या था पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और यहाँ पे क्लोजर ऑफ यहाँ पे ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट हार्ट साउंड सुना देता है विच इज लब, धक धक नहीं करता कभी भी हमारा हार्ट, विच इज लब और डब, दो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। अभी वेंट्रिकुलर साउंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल में अर्ली में जैसे जैसे हम लोग एंड बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या हो रहा है सेमी लूनर वाल्व क्लोज्ड हो रहा है। बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या हो रहा है बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल में सेमी लूनर वाल्व क्लोज हो रहा है, सेकेंड हार्ट साउंड डब से क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। कहाँ जा रहा है यहाँ ब्लड जब क्लोज हो रहा है तो आर्ट्रिया में जा रहे ब्लड्स, यहाँ से सुपीरियर वेना कावा से इन्फीरियर वेना कावा से सब सारे ब्लड्स कहाँ गए राइट एट्रियम में और पल्मोनरी वेन से कहाँ आ गए ब्लड लेफ्ट एट्रियम में। फिर क्या हो रहा है